तो नून एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी इन डेवलपमेंट चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट। रिपीट, इससे पहले वाले वीडियो में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जस्ट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के बाकी सारे सेक्टर्स के साथ क्या हाल किया। तो आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे the impact of British rule, the impact of British rule on agricultural sector। तो ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। During the British rule, around 70 to 75% of the population was engaged in agriculture। यानी हमारे देश के 70 से 75% ऑफ पॉपुलेशन, अराउंड 3/4 यानी हर 4 में से 3 इंसान एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फॉर इट्स सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी 70 to 75% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी भी देश का इतना बड़ा आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो देश एग्रियन इकोनॉमी है। यानी हमारा देश का जो इकोनॉमी था वो एग्रियन था, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल वे डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज ए सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अगेन, डिस्पाइट 70 to 75% of population being engaged in agriculture had low productivity। लो प्रोडक्टिविटी यानी जो आउटपुट हम जनरेट कर रहे थे वो काफी कम जनरेट कर रहे थे। वी वेयर इनसफिशिएंट और नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ आइदर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। इसका मतलब कि 70 से 75% ऑफ पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बाद वी हैड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन and we also had a shortage of cash crops। Cash crops are those crops which are used as raw material in industries, example jute, cotton, tea leaves, these are all cash crops which are used as raw material for industries। We had shortage of both food crops as well as cash crops। Point number 3, it was also observed during the British rule that the agriculture sector stagnated। I will use a word, stagnated। Stagnation refers to a process where the growth is zero। If there is no growth or no development, the economy is said to stagnate। It means that the Britishers, during the British rule, the agriculture sector didn't prosper। Instead, it had no growth। It had no growth। So these are the three important things about agriculture that you need to keep in mind. First, around 70 to 75% of the population of India just before independence was engaged in agriculture। As such a vast population was engaged in agriculture, the Indian economy was classified as an agrarian economy। Despite being such a high proportion of labor, our economy was insufficient in production of food crops or cash crops। Food crops to be consumed by people like rice and wheat, and cash crops like jute and cotton, which are used as raw material in industries। And our agriculture sector stagnated। Stagnated means there was no growth, no development in agriculture। We would try to classify the reasons behind this। क्या कारण थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल स्टैग्नेटेड। देयर आर 5 रीजंस। कितने रीजंस हैं? 5। पहले हम रीजंस के नाम लिखेंगे। पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द फर्स्ट वन इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। नाउ विल मूव टू द सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन वाज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। विल मूव टू द थर्ड रीजन। This is known as commercialization of agriculture by the Britishers। We'll move to the fourth reason,
adverse effect of partition. We'll move to the fifth reason, lack of investment. These are the 5 reasons for which the agriculture sector stagnated during the British rule. We will try to classify each and every reason in detail, starting with the land settlement system. Land settlement system क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने सारे जमीन जमींदार को दे दिए. उन्होंने जमींदार अपॉइंट किए. जमींदार गांव के ही लोग थे जो अपॉइंटेड थे बाय द ब्रिटिशर, जिनको किसानों से लैंड यूज करने का रेंट या फिर लगान कलेक्ट करना था. तो जमींदार क्या करते थे, किसानों से लगान या रेंट कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को जमा करते थे. और सपोज जमींदार को देना है 50%, तो वो 60, 70, 80% ऑफ प्रोड्यूस लेते थे और एक प्रॉफिट डिराइव करते थे इन ट्रांजेक्शन से. तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जमींदार से अपॉइंट किए. ये जमींदार जो थे या जो ब्रिटिश सरकार था, वो लगान के फॉर्म पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स थे उनका सारा प्रॉफिट एब्जॉर्ब कर लेते थे. दे हैड हाई लगान. उन्होंने लैंड का रेंट या लगान इतना हाई रखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी किसान हैं उनके सारे के सारे प्रॉफिट विल गो बैक टू द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स और जमींदार्स, बट नॉट इन द हैंड ऑफ फार्मर्स. तो इतना हाई रेंट वो उन्होंने रखा था कि सारा का सारा प्रॉफिट वापस जमींदार्स के पास या ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जा रहा था. अब इन फार्मर्स के पास कुछ भी इंसेंटिव नहीं था, कुछ भी बेनिफिट नहीं था कि वो इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर में. तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम सबसे पहला रीजन है जिसके कारण ये देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश रूल में स्टैग्नेट हुआ. क्या हुआ? स्टैग्नेट. लेट मी राइट डाउन द पॉइंट्स. लैंड सेटलमेंट सिस्टम. तो आपको याद रखना है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में सबसे पहले जमींदार आएंगे. ब्रिटिशर्स ने जमींदार से अपॉइंट किए थे. इन जमींदार को ये ड्यूटी दिया गया था कि उन्हें किसानों से रेंट कलेक्ट करना है और ये रेंट ब्रिटिश ट्रेजरी में एक स्पेसिफाइड डेट और एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी डिपॉजिट करना है. पॉइंट नंबर 2, ना ही ब्रिटिशर्स ने और ना ही जमींदार ने कभी भी कैसा भी कोई सा भी इन्वेस्टमेंट किया ताकि एग्रीकल्चर के सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए, लैंड के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, लैंड को डेवलप किया जाए, या किसानों के लिए इन्होंने कोई भी स्कीम या कोई भी योजना या कोई भी बेनिफिट क्रिएट नहीं किया. पॉइंट नंबर 3, ये जो जमींदार थे ये ह्यूज लगान लेते थे. रिपीट द वर्ड ह्यूज लगान. लगान इज नथिंग बट लैंड का रेंट. लैंड का रेंट को उस समय लगान वर्ड हम यूज करते हैं उसके लिए. तो दे कलेक्टेड ह्यूज लगान. ये लगान इतना ह्यूज था, अराउंड 50 to 75% ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब वो जितना उगाएंगे, सपोज वो 10 बोरा उगाते तो 5 से लेकर 7 बोरा के आसपास, 7-8 बोरा वो लगान के फॉर्म पे किसानों से कलेक्ट करते थे. तो किसान का जो भी प्रॉफिट था वो सब उनको लगान के फॉर्म पे जमा कर देना था जमींदार के पास, जो इंटर्न उसको जमा करते थे ब्रिटिश सरकार के साथ. पॉइंट नंबर 4 हम पढ़ते हैं. तो अब ये बात होता है कि ये जमींदार क्यों इतना स्ट्रिक्टली कलेक्ट करते थे लगान को, क्योंकि हालांकि ये जमींदार इंडियन थे पर फिर भी ये रेंट कलेक्शन, लैंड का रेंट कलेक्शन को या लगान को क्यों इतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि अगर आप एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, स्पेसिफाइड यानी जो फिक्स्ड है पहले से, एक स्पेसिफाइड टाइम तक, स्पेसिफाइड टाइम यानी सपोज 15th ऑफ द मंथ, 20th ऑफ द मंथ, ठीक है, किसी भी डेट तक अगर आप जमा नहीं करते तो हम आपसे आपका जिम्मेदारी का हक छीन के किसी और को दे देंगे. तो हालांकि जमींदार इंडियन थे पर वो एक हार्श या फिर स्ट्रिक्ट अप्रोच लेते थे टुवर्ड्स लगान कलेक्शन, क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर डेट तक एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जमा नहीं करेंगे ब्रिटिश ट्रेजरी में तो उनसे उनका जिम्मेदारी का हक ब्रिटिश सरकार छीन लेंगे. तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसमें ह्यूज लगान रखा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इस लगान को कलेक्ट करने के लिए
हर्ष जमीदास को अपॉइंट किया गया था। इसके तहत हमारे देश के किसान अपने एग्रीकल्चर के कोई भी मतलब अपने एग्रीकल्चर के द्वारा किए गए एग्रीकल्चर के द्वारा जो प्रॉफिट उनको जाना था वो उनको ना जाकर ब्रिटिश ट्रेजरी में जाके जमा हो गया, और किसान जो एग्रीकल्चर में थे वो ग्रो नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, वो जीरो ग्रोथ की तरफ रह गए। पॉइंट नंबर 2, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको मशीन्स चाहिए, टूल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, न्यू थिंकिंग चाहिए, आपको साइंस चाहिए। ब्रिटिश ज़माने में एग्रीकल्चर इसलिए भी स्टैग्नेट हुआ क्योंकि हमने देखा कि वहां पर था लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थे? क्योंकि सबसे पहला देयर वाज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं था, ट्रैक्टर्स या फिर हार्वेस्टर मशीन्स ये सारे प्रेजेंट नहीं थे। पॉइंट नंबर 3, नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। आज ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमारे देश के किसान कितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल यूज़ करते हैं। उस ज़माने में के जो किसान थे वो ना तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे ना केमिकल्स यूज़ करते थे। तो इन सारे कारणों से ये देखा गया। पॉइंट नंबर 4, ऑर्थोडॉक्स यानी काफ़ी पुराना या फिर सुपरस्टिशियस फार्मिंग प्रैक्टिस, इन सब के कारण ये देखा गया कि पुराने ज़माने के जो हमारे देश के किसान थे, हालांकि वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे पर उनका जो प्रोड्यूस था वो काफ़ी लो था। द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फार्मर्स वाज वेरी वेरी लो। पॉइंट नंबर 3। तो हम मूव करेंगे पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 हमारा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, गांव में जो किसान थे वो फूड क्रॉप्स उगाते थे और एक गांव सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था। सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस एक गांव में ही जो भी सामान चाहिए लोगों को वो आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू, और एक गांव सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था अपने आप में। ठीक है, तो उनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कहीं से और कुछ नहीं लेना था, वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ सफिशिएंट है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कमर्शियलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को, यानी उन्होंने फार्मर्स को मूव किया फ्रॉम ग्रोइंग फूड क्रॉप्स टू ग्रोइंग कैश क्रॉप्स। मैं रिपीट कर चुका हूं, फूड क्रॉप्स वो हैं जो हम खाते हैं या पीपल कंज्यूम करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, एग्जाम्पल वीट, राइस, पल्सेस जो हम खाते हैं, और कैश क्रॉप्स वो हैं जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। कॉटन, कॉटन से लेकर हम कपड़े बना सकते हैं, जूट बोरे बनाने के लिए और भी सामान के लिए जूट के स्लीपर्स आते हैं, बेल्ट आते हैं, टी लीव्स। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया। एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया का मतलब ये है कि उन्होंने फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए, ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए, ज़्यादा पैसे दिए कि आप फूड क्रॉप्स नहीं उगा के कैश क्रॉप्स उगाओ। अगर आप कैश क्रॉप्स उगाओगे वी विल गिव यू दिस अमाउंट, या ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी। तो फार्मर्स जो कि पहले से गरीब थे, जिनका प्रोडक्टिविटी पहले से लो था, वो फार्मर्स जिनको हाई लगान देना था लैंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत, वो मोटिवेटेड हो गए और उन्होंने क्या किया, from growing food crops they shifted their production to cash crops. So this is known as commercialization of agriculture. It is a commercialization of agriculture means that the farmers shifted from production of food crops towards production of cash crops to earn higher incentives or profits, ताकि उनको ज़्यादा incentives मिले या ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया, उन्होंने फार्मर्स को शिफ्ट किया फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स, ताकि जो ब्रिटेन में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको कैश क्रॉप्स या फिर रॉ मटेरियल्स दिया जा सके, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यूस बेसिस पे चला सके। हालांकि ब्रिटिशर्स को कैश क्रॉप्स ज़्यादा चाहिए था, इसलिए उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया। पॉइंट नंबर 4, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन।
ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के जाते जाते हमारे देश का उन्होंने पार्टीशन कर दिया। हमारे देश को उन्होंने उस समय तीन हिस्सों में पार्टीशन किया था। एक था पाकिस्तान, एक था इंडिया, एक था ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान वो था बेसिकली जहां पर हमने अपने पंजाब के, राजस्थान के एक बहुत बड़ा फर्टाइल पार्ट पाकिस्तान को चला गया, और ईस्ट पाकिस्तान में चला गया जूट ग्रोइंग एरिया। तो पार्टीशन के इफेक्ट से हमारे देश का जो एग्रीकल्चरेबल एरिया था वो काफी रिड्यूस हो गया, बिकॉज ए वेरी फर्टाइल पार्ट went to Pakistan, and a very large jute growing area went to बांग्लादेश, या ईस्ट पाकिस्तान उसको बोलते थे उस समय। तो इसके कारण हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गया। पॉइंट नंबर 5 है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश रूल में इसलिए भी स्टैग्नेट किया क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं था। जमींदार और ब्रिटिशर्स तो सिर्फ लगान चाहते थे या रेंट कलेक्ट करना चाहते थे, उन्हें कोई मैटर नहीं करता था लैंड प्रोडक्टिव है नहीं है, ना वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड जो किसान थे, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, जो सॉइल पे काम करते थे, उनको ये प्रॉब्लम हुआ कि उनके पास पैसे ही नहीं है। वो तो पूरे मिजरी में है, पॉवर्टी में है। वो दिन भर खेती करके भी सारा प्रॉफिट जो खेती का होगा वो लगान के फॉर्म पे अंग्रेजों को दे देंगे, तो उनके पास कुछ है ही नहीं सेविंग्स। अगर सेविंग्स नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, लगता है किस फॉर्म पे इन्वेस्टमेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज। अगर आप ये चाहते हैं कि फ्लड के पानी या ज़्यादा पानी खेत में ना रहे तो आपको ड्रेनेज करना पड़ता है। ड्रेनेज करने के लिए आपको पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस समय। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एक और चीज में चाहिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेरेस फार्मिंग। जहां पर भी टी उगता है, पहाड़ों के ऊपर टी उगता है, पहाड़ को काटा जाता है इन फॉर्म ऑफ टेरेस। टेरेस यानी सीढ़ी के फॉर्म पे उसको काटा जाता ताकि पानी रुके नहीं और सारा पानी बह जाए। और उसको टेरेस फार्मिंग के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ना ही उनके पास ड्रेनेज के लिए, ना ही टेरेस फार्मिंग के लिए, तो इन सब के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थे। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि हमने क्या पढ़ा एग्रीकल्चर में। हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिश जब हमारे देश को छोड़ के जाने वाले थे, जस्ट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे देश के 70 से 75% ऑफ पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इसलिए हमारा इकोनॉमी एग्रीन हो गया। एग्रीन इकोनॉमी होने के बाद भी ना तो हम सफिशिएंट थे या सेल्फ सफिशिएंट थे इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स और इन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स वो है जो हम कंज्यूम करते हैं, कैश क्रॉप्स वो है जो हमारे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स बनते हैं। रीजंस काफ़ी सारे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं क्यों हम सफिशिएंट नहीं थे। साथ ही साथ में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय स्टैग्नेट हो रहा था। स्टैग्नेट मीन्स वो ऐसे स्टेज में था जहां पर डेवलपमेंट जीरो था, ग्रोथ भी जीरो था। 5 रीजंस बताए गए हैं जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट हो रहा था, या वी हैड इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप्स। रीजंस क्या है? सबसे पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम में बेसिकली जमींदार को अपॉइंट किया था जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट लगान कलेक्शन करते थे। लगान भी काफ़ी हाई रखा गया था और किसानों का सारा प्रॉफिट लगान के फॉर्म पे अंग्रेज़ों के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता था विया द हेल्प ऑफ जमींदार। और किसान, हमारे देश के किसान पोवर्टी में थे। उन्होंने, अंग्रेजों ने या फिर जमींदार ने कभी भी कोई कोशिश नहीं की, कोई एम नहीं रखा कि किस तरह से हम इन्वेस्ट करें या एग्रीकल्चर को ग्रो करें। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजी नहीं था, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते थे, केमिकल्स यूज़ नहीं करते थे, सुपरस्टिशियस फार्मर थे, इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो था उस समय। पॉइंट नंबर 3, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये वो प्रोसेस है या फेनोमेना है जहाँ पर अंग्रेजों ने किसानों को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए ज़्यादा इंसेंटिव या ज़्यादा बेनिफिट दिया कंपेयर टू द फार्मर्स दैट वर ऑप्टिंग टू ग्रो फूड क्रॉप्स। क्योंकि किसान पहले से ही गरीब थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शिफ्ट किया अपना प्रोडक्शन टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में वो इंडिगो, जूट, कॉटन, इस टाइप के क्रॉप्स उगाते थे।
तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फार्मर्स को ज़्यादा इंसेंटिव्स दिया कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, क्योंकि उन्हें कैश क्रॉप्स चाहिए भी थे अपने ग्रेट ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए, तो उन्होंने किसानों को ज़्यादा इंसेंटिव दिया कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं। पॉइंट नंबर 4, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। आज़ादी से ठीक पहले हमारे देश का पार्टीशन हो चुका था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान फॉर्म था। ए वेरी ह्यूज फर्टाइल पार्ट ऑफ राजस्थान और पंजाब वेंट टू पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना है अभी 1971 में, वहाँ पर एक लार्ज पार्ट ऑफ जूट ग्रोइंग एरिया चला गया हमारे देश का। तो टोटल एरिया अंडर एग्रीकल्चर काफ़ी रिड्यूस हो गया इससे। एंड लास्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे देश के किसानों के पास तो कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, वो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी या मिजरी में थे। ऑन द अदर हैंड जमींदार से ब्रिटिशर्स जो ह्यूज लगान कलेक्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर से, उन्होंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट चाहिए था फॉर टेरेस फार्मिंग या फिर ड्रेनेज के लिए, तो उन्होंने कभी इन टाइप के एरियाज में इन्वेस्ट नहीं किया, तो एग्रीकल्चर लास्ट ऑफ ऑल स्टैग्नेट हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इन कारणों से ग्रो नहीं कर पाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में।